ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নীলকণ্ঠৰ আদৰৰ হানি চাবা নুপুৰা। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुँचाया जो मेरे सामान्य निवास है। যেতিয়া মোৰ থকা ৰুমটোৰ কাৰ্যকলাপ চিৰাখানাৰ নিচিনা দেখা গৈছিল, তেতিয়া মই বৰ কষ্টৰে দুয়োটা চৰাইক ধৰি জালিঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিলোঁ। তাৰ পিছত মোৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। दोनों नवगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। দুয়োটা পক্ষীয়ে আগৰ পৰা থকাসকলৰ মাজত এক নতুন কৌতূহল আনি দিলে। যিদৰে নৱবধূৰ আগমন হোৱাৰ পাছত পৰিয়ালৰ মানুহৰ মাজত আনন্দ বিয়পি পৰে, ঠিক তেনেদৰে জীৱ জন্তুৰ মাজতো পৰিলক্ষিত দেখা গৈছিল। लक्का कबूतर नाचना शुरू कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगो की रागिनी अल्पाने लगे। बड़े सरगोश सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे सरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। কি হৈছিল? পাৰ চৰাইয়ে নৃত্য এৰি ময়ূৰযোৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব ধৰিলে। শহাপহুটোৱে বহি নিৰীক্ষণত ব্যস্ত হ'ল। ভাটৌটোৱে যেন এটা চকু মুদি সূক্ষ্মতাৰে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে। এনেকৈ লাহে লাহে ময়ূৰৰ পোৱালি দুটা ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उसका कायाकल्प वैसे ही क्रमश और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली बनाना। যে কি হৈ পৰিছিল, এইদৰে কি হ'ল, লাহে লাহে ময়ূৰৰ পোৱালি দুটা ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ দৰে ৰঙীন মনোমোহা হ'বলৈ ধৰিলে। ময়ূৰৰ ঠোঁট চাবা, मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। पूंछ अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूपशाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण बाँव दोनों पंखों में समेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंख पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखता विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, तैरी कर शब्द सुनाना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आঁকা जा सकता। কি হৈ পৰিছিল যে তাৰ কি আছিল, সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ দৰে ৰঙীন মনোমোহা হ'বলৈ ধৰিলে। ময়ূৰৰ ঠোঁট, চকু, ডিঙি, ডেউকা সৌন্দৰ্য চাবলগীয়া। ইয়াক শব্দৰে কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰি, বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। নীল বৰণীয়া ডিঙিৰ কাৰণে ময়ূৰৰ নাম নীলকণ্ঠ আৰু তাইৰ ছায়াৰ দৰে থকাৰ কাৰণে ময়ূৰজনীৰ নাম ৰখা হৈছিল ৰাধা। যে ময়ূৰৰ গলত কি আছিল, দীঘল দীঘল সেউজীয়া কি আছিল, নোমেৰে ঢকা আছিল। আৰু সি কি কৰিছিল, যেতিয়া দক্ষিণ বাওঁ দোফালৰ
দুফালৰ পাখিবিলাক কি কৰিছিল মেলি দিছিল, তেতিয়া কি দেখা গৈছিল, এটা বগা বগা আলেখন স্পষ্ট হৈছিল। ধূপ লম্বী হৈ নেজডাল দীঘল আছিল আৰু পাখিবিলাক চন্দ্ৰিকাৰ দৰে অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰধনুৰ দৰে ৰঙেৰে উদ্দীপ্ত হৈ উঠিছিল। আৰু যেতিয়া কি কৰিছিল, ওখ গৰ্দনেৰে ওখ ডিঙি কি কৰিছিল, ওখ ডিঙিটোৰে ডিঙি মেলি চাইছিল, তেতিয়া এটা বিশেষ ভংগীমা দেখা গৈছিল। আৰু সি কি কৰিছিল, তলমুৱা কৰি দানা যেতিয়া খাইছিল, পানী খাইছিল, আৰু যেতিয়া কি কৰিছিল, শব্দ শুনাইছিল, তেতিয়া এটা সৌন্দৰ্য দেখা গৈছিল। मोर का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपशाही गर्दन हवा में चंचल कलगी पंखों के समेत ले पत्रलेखन मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने हैं। जे मयूरनी का विकास अर्थात मयूरनीर विकास ময়ূৰৰ সমান চমৎকাৰী নাছিল, কিন্তু কি আছিল, अपनी लंबी धूपशाही गर्दन, কিন্তু তাৰ দীঘল গৰ্দনেৰে কি কৰিছিল, হাৱা মে চঞ্চল কলগি, যেন বতাহতে কি কৰিছিল, সেয়ে কলগিটো উৰি আছিল। পংখী কি চমৎকাৰ, যে পাখাবিলাক কি আছিল, পত্ৰলেখা আছিল, পত্ৰলেখাৰ মন্থৰ গতি আদি কি আছিল, ময়ূৰৰ উপযুক্ত সহচাৰিণী ৰূপে ৰাধাক কি কৰিছিল, অৰ্থাৎ ময়ূৰণীক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी साया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। नीलाभ ग्रीवा হোৱাৰ কাৰণে ময়ূৰৰ নাম ৰখা গৈছিল নীলকণ্ঠ, আৰু তাৰ ছায়াৰ লগে লগে থকাৰ কাৰণে ময়ূৰজনীৰ নাম ৰখা হৈছিল ৰাধা। मुझसे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब सरगोश कबूतर आदि को सेना एकत्र कर उस और ले जा जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबको रखाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे सुंस प्रहार से उसे दंड देने पड़ा। মই নজনাকৈ নীলকণ্ঠ মোৰ চিৰিয়াখানাৰ জীৱ জন্তুৰ সেনাপতি আৰু সংৰক্ষক হ'লহি। ৰাতিপুৱা সি শহা পাৰ আদিৰ সৈতে লগ লাগি দানা দিয়া ঠাইলৈ লৈ যায় আৰু ঘূৰি ফুৰি যেন সকলোকে পহৰা দিয়ে। যিয়ে অলপ ইফাল সিফাল কৰে তাৰ নিজৰ তীক্ষ্ণ ঠোঁটেৰে দণ্ডবিধান কৰে। सरगोश के सोते बच्चे को वह खून से उनके कान पकड़ ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रंद न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैरों खून से सरगोश के बच्चे को कर्णवेश संस्कार हो जाता है, पर वे फिर कभी उसे क्रुद्ध होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतु के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंख में सुअर सा খেলতে रहते। এইদৰে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তাৰ কি আছিল, তাৰ বহুত মৰমো আছিল। সকলোৰে লগত সি আনন্দৰে খেল ধেমালি কৰিছিল। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु सरगोश सांप की पकड़ में आ गया।
गिरने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेख आधा जो बाहर था उससे सी का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को कष्ट सुनाई दे सकते। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसकी चौकोने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पुष्पंश समेट कर स्वर से एक झटपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपने सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप ने फोन पर फंस मारने से सरगोश के घायल हो सकता है। এনেকুৱা অৱস্থাতে এডাল সাপ জালিৰ ভিতৰত আহি সোমাল। সকলো পশু পক্ষী ইপিনে সিপিনে লুকালে। কেৱল এটি শহা পোৱালীয়ে সাপৰ মুখত পৰিল। সাপটোৱে শহাপহুটোক গিলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আধা শৰীৰ মুখত ভৰাই ৰাখিছে। নীলকণ্ঠ দূৰৰ ঝুলনাত শুই আছিল। শব্দ শুনি সতৰ্ক হ'ল। ওপৰৰ পৰা নামি আহি সাপডালক ঠোঁটেৰে আঘাত কৰাত মুখৰ পৰা শহা পোৱালীটো অৰ্ধমৃত অৱস্থাত ওলাই পৰিল। उसने सांप को फांद के पास पंजों से दबाया और फिर खून से इतने प्रहार किए कि आधा मरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते हुए सरगोश का बच्चा मुंह से निकल, परंतु निस्तेजा वही पड़ रहा। যেতিয়া সাপডালক কি কৰিছিল उस सांप को फोन से पास पंखों से दबाया। সেই সাপটোক কি কৰিছিল, তাৰ ফেনাত পাখিৰে দবাই ৰাখিছিল আৰু ঠোঁটেৰে কি কৰিছিল, খুচি খুচি তাক আধা মৰা কৰিছিল। আধা মৰা কৰোঁতে কি হৈ পৰিছিল, সি যে শহাপহুৰ পোৱালিটো ধৰিছিল, সেই শহাপহুৰ পোৱালিটো মুখৰ পৰা ওলাই পৰিছিল। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंदकेका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खन कर चुका तब उस शिशु सरगोश के पास गया। रात भर उसे पंख के नीचे रखे उच्चता देता रहा। राधाই কোনো সহায়তা অনুভৱ নকৰি ৰাধাৰ কোনো সহায়তা নালাগে বুলি ভাবি তাই কি কৰিছিল, তাই ডিঙি বেঁকা কৰি কি কৰিছিল, তাই এই ঘটনাটো সকলোকে শুনাই দিছিল। আৰু যেতিয়া শুনাইছিল তেতিয়া মালি তালৈ গৈছিল আৰু আমি সকলোৱে গৈছিলোঁ। আৰু নীলকণ্ঠই যেতিয়া সাপক 2 খণ্ড কৰিছিল তেতিয়া শিশু শহাপহুৰ পোৱালিটো গোটেই ৰাতি তাৰ পাখিৰ উষ্ণতা দি ৰাখিছিল। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसका जीवन ही कुकर्म है। जे कार्तिके मयूरक किय যুদ্ধৰ বাহনৰ বাবে ময়ূৰক কিয় নিৰ্বাচন কৰিছিল, এয়া সেই পক্ষীৰ ৰূপ আৰু স্বভাৱ দেখি গম পোৱা যায়। ময়ূৰ কলাপ্ৰিয় বীৰ পক্ষী, হিংসক মাত্ৰ নহয়। সেইকাৰণে তাক শগুন আদি শ্ৰেণীত ৰাখিব নোৱাৰি, যাৰ জীৱনে কুকৰ্ম। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता थी ही।
उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुस्से जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग सम पर ठहर ठहर जाता था। নীলকণ্ঠৰ জাতিগত বিশেষত্ব থকাৰ উপৰিও মানৱীয় গুণো আছিল। তাৰ নৃত্যত এক সহজলভ্য লয় তাল আছিল। ৰাধাই নীলকণ্ঠৰ দৰে নাচিব নাজানিছিল। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी। राधा नीलकंठर दरे नाचिब नाजानिছিল, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नित्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिने ओर। इस प्रकार उसी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने जैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरी जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगिनी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गए। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुँच आता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मय विभूति हो उठता था। कोई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पहनू फंसों से वह भयंकर विघ्न को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने सने ऐसी कोमलता से हिले हिले उठाकर खाता था कि खुशी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। राधा नीलकंठर समाने की करिब नाजानिছিল, नाचिब नाजानिছিল। ताইৰ গতি ছন্দ আছিল। নীলকণ্ঠই মোক আনন্দ দিবলৈ প্ৰায়ে ওচৰলৈ আহে, নৃত্য কৰিছিল। নীলকণ্ঠৰ মুদ্ৰাত সকলো বিস্ময়বোধ হৈ পৰিছিল। নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধাৰ বিস্ময়বোধ হৈ পৰিছিল যে নীলকণ্ঠৰ ভাৱ ভংগিমা দেখি বিদেশী মহিলাই কি কৰিছিল, তাক পাৰফেক্ট জেণ্টলমেন উপাধি দিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা।